Hello everyone and welcome back to our channel. Today we are going to start one of the important topic from the chapter 1 of the microeconomics, that is a production possibility curve. We all know that human wants are unlimited, but the resources to satisfy that want are limited. So we cannot satisfy all our want, clear? And even the richest person on this earth cannot satisfy all his want, because as compared to his wants, his resources are always limited. And the same is applicable in an economy, even if the economy uses all its resources. Economy means a country uses all its resources in a best possible way. Even then, its capabilities are restricted due to the scarcity of the resources. So, we cannot have everything that we want. So, we have to make a choice between the resources which want to be satisfied first, which goods are to be produced first, and this production possibility curve is one of the criteria to understand how an economy satisfy its wants with the limited resources available with that economy. So what is production possibility curve? Curve means a graphical presentation. We are presenting it on a graph. So what is curve means? What does curve means? So curve word लिखे तो हम क्या लिखेंगे? It is graphical presentation. It is graphical presentation क्योंकि curve था. किसकी graphical presentation? Possibilities की. So it is a graphical presentation of possible combination of, यहाँ पे जब हम बात करते हैं द वे टू लर्न दिस, हम जब भी हमने ग्राफ बनाने सीखे तो हमने इस वे में ज़्यादा सीखे. तो यहाँ पे एक गुड आप एक्स एक्सिस पे शो कर दोगे, एक गुड आप वाई एक्सिस पे शो कर दोगे. तो इट इज़ अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट an economy can word is very important. Can production है, can produce with the help of given resources and technology. Now we will understand on what basis we are preparing our production possibility curve. So there are some assumptions of production possibility curve. Another way is the PPC. Clear? So what are the assumptions of the PPC? What are the assumptions of the production possibility curve? The first assumption is resources are fixed. हाँ, हमारे सारे देशों के पास अपनी अपनी जो क्वांटिटी है रिसोर्सेज की है वो क्या है? फिक्स है. देन दूसरी चीज़ जब हम लिखेंगे ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, ये मैंने अभी बता दिया कि इसको टू गुड्स ही क्यों बोला. ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड. वैसे इकोनॉमिस्ट ने अपनी एनालिसिस को इजी करने के लिए, आपको समझाने के लिए टू गुड्स का कंसेप्ट लिया है. एंड थर्ड, रिसोर्सेज जो हमारे पास है आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड. आपने फुली एंड एफिशिएंटली उसको क्या किया हुआ है? यूटिलाइज किया हुआ है, यूज किया हुआ है. एंड नेक्स्ट, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट. मीन्स जो लोग, अगर हम बात करते हैं, अगर कोई आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, अगर उन्हें मतलब कि एक चीज़ अच्छे से बनानी आती है तो उनको दूसरी चीज़ अच्छे से नहीं आती. इफ़ अ पर्सन कैन प्रोड्यूस वेल, मतलब कि ही इज़ वेरी गुड इन प्रोड्यूसिंग द बटर, वो बटर मक्खन बहुत अच्छे से बना सकते हैं, ही इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस द क्लॉथ. तो इसलिए हम कहते हैं कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट. मीन्स अगर हम एक चीज़ को बना पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है हम दूसरी चीज़ को भी उतने अच्छे तरीके से बना पाएंगे. क्लियर? एंड द लास्ट इज टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट. जो टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमने बात की थी जब हम चीज़ों को बना रहे हैं तो हम विद द हेल्प ऑफ द रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी बना रहे हैं. तो ये टेक्नोलॉजी और ये रिसोर्सेज हम दोनों के पास क्या है? फिक्स्ड है. टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, मतलब चेंजेस नहीं हो रहे हैं. नाउ बिकॉज हमारे रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है, इसलिए आप जब आपके पास चॉइस आती है वेदर टू प्रोड्यूस गुड एक्स और गुड वाई,
Earlier we are producing 16 units of the good y and 1 unit of the good x. Now we want to produce more of the goods x and less of the good y, क्योंकि resources are fixed. तो आपको good y को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और good x को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो आप good y को क्या करोगे, कम करोगे. इन अर्लियर स्टेज आपके पास ये बहुत ज़्यादा है, तो आप now you want to increase the production of good x, you want to increase the production to 2 units, and now you have to reduce the production of the good y. So you sacrificed 1 unit of the good y in order to produce 1 extra unit of the good x. तो आपने यहाँ पे कितने कर दिया, 1 यूनिट कम कर दिया, आपके पास 15. इट इज़ टोटली एन assumption basis. अगेन यू डिसाइडेड टू प्रोड्यूस मोर यूनिट्स. तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से y को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट. अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आपको ज़्यादा लोग यहाँ से शिफ्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि जो लोग ये चीज़ अच्छे से बना रहे हैं गुड y को, वो इतने अच्छे तरीके से गुड x को नहीं बना रहे हैं. तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है इसका 1 यूनिट बनाने के लिए. मतलब यहाँ पे अगर एक बंदा 1 यूनिट बना रहा है तो यहाँ पे 2 बंदे 1 यूनिट बना रहे. तो यू वॉन्ट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, आप गुड एक्स को बढ़ाना चाहते हो, आपको गुड वाई की प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा कम करना पड़ेगा. नाउ यू डिसाइडेड टू सेक्रीफाइस 2 यूनिट्स फ्रॉम द गुड वाई. तो यहाँ पे 13 हो गए टू प्रोड्यूस 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द गुड एक्स. नाउ यू वॉन्ट टू इंक्रीज मोर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड एक्स. Again you have to sacrifice some of the good of y. Now you will sacrifice 3 units to produce 1 extra unit of the good x. 13 minus 3, it will be 10. Done. Then you want to increase more of the good x, you have to sacrifice, now you will sacrifice 4 units. तो यहाँ पे 6. जैसे गुड x की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गुड y की आप प्रोडक्शन को कम कर रहे हो, इसे हम क्या कहते हैं कि आप जो रिसोर्सेज ट्रांसफ़र कर रहे हो, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी धीरे धीरे क्या करी है, इंक्रीज करी है. एंड दैट इज़ अ रीज़न जब हम पीपीसी का कर्व बनाएंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कर्व बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यू विल मेंशन गुड वाई, लेबलिंग करनी ज़रूरी है, अदरवाइज देयर विल बी नो मार्क्स फॉर मेकिंग द डायग्राम. अब जब आप इसकी प्लॉटिंग करोगे कि अर्लियर यू वर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स, देयर वर 16 यूनिट्स ऑफ गुड वाई, क्लियर. देन यू इंक्रीज, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट आ गया आपके सामने. देन आपने क्या किया, गुड इसका जब सेकंड यूनिट बनाना शुरू किया तो आपने इसके यूनिट्स क्या किए, मतलब आपने सेकंड 15 पे आए थे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, क्योंकि 16 से नीचे एक पॉइंट होगा. एंड धीरे धीरे करके जब आप पॉइंट्स को प्लॉट करोगे ना, तो इट विल बी ऑफ सच अ शेप लाइक दिस, लाइक अ केव. एंड दैट इज़ अ रीज़न, इसकी जो शेप होती है उसे क्या कहते हैं, कनकेव की शेप कहते हैं. देन वन थिंग, अगर आपके लिए, क्योंकि पहले बोर्ड में आ जाते थे, जब भी आपकी MRT इंक्रीजिंग होगी, मतलब आपको प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं, जब भी आपकी MRT इंक्रीजिंग होगी तो आपकी शेप होगी कनकेव. जब भी आपकी MRT डिक्रीजिंग होगी आपकी शेप होगी कन्वेक्स. जब भी आपकी MRT सेम रहेगी तब आपकी शेप आएगी दैट इज़ स्ट्रेट. वैसे नॉर्मली जो होती है MRT इंक्रीजिंग होती है, इसलिए PPC की जो नॉर्मल शेप बनती है वो कनकेव बनती है. डन. तो यहाँ पे अगर इंक्रीजिंग MRT है तो कनकेव, डिक्रीजिंग MRT है कन्वेक्स, और अगर कांस्टेंट MRT है तो आप कौन सी शेप बोलोगे, दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन शेप. क्लियर है. नाउ वी विल डू सम प्रैक्टिकल ऑन दिस बेसिस. जो मैंने बोला है कि कनकेव शेप है, कन्वेक्स शेप है, एंड समटाइम्स ना बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाते थे. नाउ इट इज़ इन +1, तो इसके आने के भी अभी भी चांसेस है. तो क्वेश्चन 2015 दिल्ली बोर्ड का क्वेश्चन था, गिविंग रीजन कमेंट ऑन द शेप ऑफ द PPC. गिविंग रीजन, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट टू प्रिपेयर बाय प्रिपेयरिंग द ग्राफ, दे आर आस्किंग यू गिविंग रीजन एंड दीज आर द रीजन्स. तो गिविंग रीजन you have to comment on the shape of the PPC. Good x is given, good y is given, good x is 0, 1, 2, 3, 4, good y is given 10, 9, 7, 4, 0. तो आप MRT निकालोगे. फर्स्ट आपके पास कभी नहीं होती क्योंकि स्टार्टिंग में आपने ट्रांसफ़र नहीं किए. देन सबसे पहले आपने सेक्रीफाइस शो करना, देन गेन. सेक्रीफाइस अपॉन गेन इज द फॉर्मूला. नाउ यू आर सेक्रीफाइसिंग 10 to 9, दैट मीन्स 1 यूनिट, एंड यू आर गेनिंग 1 यूनिट, 0 to 1.
9 to 7 2 units, 1 to 2 1 unit, 7 to 4 3 units, 2 to 3 1 unit, 4 to 0 4 unit, 3 to 4 1 यूनिट। देखो 10 से 9 हो गया, आपने सेक्रीफाइस 1 का किया, 9 से 7 हुआ, आपने 2 का सेक्रीफाइस किया, 7 से 4 हुआ, 3 का सेक्रीफाइस किया, 4 से 0 4 का सेक्रीफाइस किया, 0 से 1 1 का गेन, 1 से 2 1 का गेन, 2 से 3 1 का गेन, 3 से 4 1 का गेन। तो दैट मीन्स इन एवरी सिचुएशन आपने गेन 1 का किया, 1 2 3 4 आपका सेक्रीफाइस है। नाउ चेक आपकी MRT कैसे है, 1:1 2:1 3:1 4:1। एज MRT इज इंक्रीजिंग आपकी PPC की शेप क्या होगी, इट विल बी कनकेव शेप। देन सेम वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम ऑल इंडिया बोर्ड CBSE. Good X is given, good Y is given. Good X is 0 1 2 3 then 4 and good Y is 16 12 8 4 0. Then तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं we will calculate our MRT, तो फर्स्ट इज ब्लैंक। नाउ सेक्रीफाइस पहले लिखने, 16 से 12 4, 12 से 8 4, 8 से 4 4, 4 से 0 4, सेक्रीफाइस हर यूनिट में 1 4 का यू है। एंड गेन कितना हो रहा है, 0 से 1 1, 1 से 2 1, 2 से 3 1, 3 से 4 1। अब यहाँ पे MRT क्या है, कांस्टेंट है, सेम है हर लेवल पे, ये कांस्टेंट का साइन है, तो आपका PPC का शेप क्या होगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। One more word to add, it is a straight line downward sloping curve, डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। आपने जब ड्रॉ किया, मैंने इस तरीके से बनाया ना, ये डाउनवर्ड होते हैं। अगर ये ऐसे होता है कुछ, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होते हैं। आप चाहे स्ट्रेट बनाओगे, और एक और चीज़, जब भी एक चीज़ बढ़ रही हो और एक चीज़ कम हो रही हो, तो हमेशा कर्व क्या होते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। अगर दोनों बढ़ रही हैं, दोनों कम हो रहे हैं, तो अलग से शेप बनती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, चाहे ये स्ट्रेट है चाहे कनकेव है, बट इट इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। I hope you are able to understand. If you are having any doubt, you can ask in the comment box.